See, if I have to be fully honest, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है because of the amount of technology that surrounds us. Okay. हमारे पास कैमराज होते हैं, we have phones, we have GPS, we have maps. पर इस आसान सी ज़िंदगी में I don't know why, but कुछ चीज़ों को मुश्किल तरीक़ों से करने का मज़ा ही कुछ और होता है. Okay, this is really exhausting, guys. By the end of these 10 days, मैं बनने वाली हूँ Brad Pitt, and I've even ended up cutting my finger a little bit. देखो तो ज़रा यहाँ पे कितना static है. My hair is entirely like flying in the air because of the static and how dry these conditions are. But anyway, I'm all dressed, but I'll also take you to where all the facilities are over here at the campsite, which means all the toilets, all the bathing areas, because they're quite interesting. But wait, before the campsite tour, let me give you some context. मेरा नाम तान्या है और पता नहीं क्यों मुझे आसान चीज़ें करने का मज़ा क्यों नहीं आता जो मैं इस रोड ट्रिप में आने के लिए राज़ी हो गई. और आज मैं हूँ नमीबिया में at a place called Uchiwarango where I'm camping. और इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं इतोशा नेशनल पार्क एंड वहाँ पे हम लोग 2 नाइट्स के लिए रुकने वाले हैं. So this right here is the ladies area और it's literally just 10 paces away from my campsite. तो चलो अंदर चलते हैं. Let me show you. I just had a bath over here, so it's going to be a little flooded. But यहाँ पे the good thing was that कोई भी नहीं है. So even though these are like open washrooms, I was pretty like confident कि ठीक है कोई नहीं है यहाँ पे. But यहाँ पे we have a hot water and cold water supply. I obviously chose the hot water because it's quite cold. I'll take you to the toilet section also. So these are the toilets and यहाँ पे you have to bring your own tissue paper जो मैंने पहले already खरीद लिया था. With this I was all set to head to the next destination, but you know कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं और कुछ दिन तो महा unfortunate होते हैं. And this was one such day which was a series of unfortunate events. But first it started off with a tetanus shot. Very quick stop for the day today is the Mediclinic in Uchiwarango. So Uchiwarango is the town which was the closest to our last camping spot. I got a cut this morning and need a tetanus shot for that. बट इसी बहाने आप भी मेरे साथ साथ एक नमीबिया के क्लिनिक देख रहे हो. सो इन केस एनी ऑफ यू एवर वांट टू गो टू अ हॉस्पिटल, आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया. समझ गए? कभी मत करना. ओके ओके. ओह माय गॉड. Thank you. You know, honestly, full points to the doctor though because he was pretty good and my experience overall was amazing. Thank you. Okay. Bye. Bye. अब जो हम लोग इस दिन पे चर्चा कर ही रहे हैं तो let me tell you which was the next unfortunate event. Now see, technically you cannot drive late at night in Namibia, although ये रूल भी हम लोग बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं. Wink wink. यहाँ से हाथी आ सकते हैं, यहाँ से शेर आ सकते हैं, यहाँ से लेपर्ड आ सकते हैं. But we had to get to our next campsite before it turned dark. And अभी जाके हमें refuel भी करना था. So refuel करते करते थोड़ा बहुत I think गैस स्टेशन का टूर देना तो बनता है ना. पीछे आप देख सकते हो ये पूरा गैस स्टेशन है. अभी यहाँ पे इस गाड़ी को रिफ्यूल किया गया है. तो यहाँ पे एक स्टोर है, यहाँ पे एक ATM है पीछे जो आप देख सकते हैं. और ये स्टोर भी बहुत अच्छा सा है तो मैं शायद अंदर शूट नहीं कर पाऊँगी. तो ये स्टोर भी अच्छा सा है. माफ़ करिएगा कि यहाँ का ऑडियो इतना ज़्यादा ख़राब है. एक्चुअली मुझे ये कैमरा रिव्यू करने के लिए दिया गया था इस ट्रिप से पहले, बट ये कैमरा का ऑडियो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है. बट कोई बात नहीं, हम लोग वॉइस ओवर से कॉम्पनसेट कर लेंगे. बट एनीवे, ये था स्टोर जो गैस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है. एक बहुत सही सा वॉशरूम भी कनेक्टेड है यहाँ पे. एंड यहाँ के बाद हम लोग जाने वाले हैं लंच के लिए बिकॉज भूख भी बहुत लग रही थी मुझे इस पॉइंट पे. बहुत गर्मी है. बाय आफ्टरनून यहाँ पर हमेशा बहुत गर्मी हो जाती है. एक बात तो है, यहाँ की फ़िश लुक्स अमेजिंग. ओके, दिस इज़ अ वेरी टायरिंग डे विद loads of driving, काफ़ी गर्मी. सो या, सैलड एंड फिश इज़ अमेजिंग.
और मजे से लंच करते करते आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि आगे जाके हमारी एक और मुश्किल बढ़ने वाली है एंड वी विल गेट लेट। एंड कैन समबडी प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज दिस लिटिल फिंगर? ऐसे नाइफ कौन पकड़ता है यार? बट इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी इतोशा नेशनल पार्क के गेट तक भी पहुंच गए एंड आई थॉट दैट मे बी दिस इज इट बिकॉज वील सून रीच आवर कैंपिंग डेस्टिनेशन। बट कैंपिंग डेस्टिनेशन जो थी वो बिल्कुल पार्क के अंदर थी एंड अंदर आप रात को तो ड्राइव कर ही नहीं सकते। बट एक और प्रॉब्लम थी बीच में। नहीं, अभी यहाँ से ये राइट मुड़ना है। गेस व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ? तो अभी हम लोग बहुत जल्द वहाँ उस दिशा में जा रहे हैं एंड वहाँ पे जो रोड है वो पूरी ग्रेवल रोड है। सो वी नीड टू डिफ्लेट द टायर और इसको डिफ्लेट करने की ज़रूरत है टू 1.8। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे वाज कि एक टायर का जो टायर प्रेशर मॉनिटर नोजल था वो फंस गया, वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैं पूरी तरह से टायर्स नहीं डिफ्लेट कर पाई। हैड टू गो हाफ वे ऑन दीज बैड रोड्स, टुक अ कॉल टू रिटर्न बैक बिकॉज इट वाज नॉट सेफ एट ऑल। बट डू यू नो एक 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के पार्क में रैंडमली हाथियों को स्पॉट करना कितना ज़्यादा रेयर होता है, वो भी सड़क पे चलते चलते। वाओ, सो व्हाट वी जस्ट विटनेस्ड राइट नाउ इज एन एलिफेंट हर्ड क्रॉसिंग at the road and obviously we cannot drive while there's an animal crossing going on, but this is such a surreal experience. Look at this, guys. There's a elephant on the road. They're protecting the little baby elephant. और पता नहीं क्यों there's something about nature which is so rare and surreal. आपको कितनी बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे वाइल्ड एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। और आज की दूसरी रेयर बात ये थी कि इतोशा नेशनल पार्क से जल्दी जल्दी निकलने के बाद हमें रहने की जगह भी मिल गई। इतोशा नेशनल पार्क में वी वर सपोज्ड टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड हलाली कैंप, बट फॉर सम रीज़न वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इन द नाइट यू कैन नॉट ड्राइव ओवर हियर और बिकॉज आई गॉट अ टेटनस शॉट बिकॉज ऑफ माई वूंड, so had to stop midway at a lodge and thankfully because it's a lodge I don't have to be camping today. और camping नहीं कर रही, that means I can stay in a nice room, take a nice hot shower and chill by the pool. They have a nice pool over here. दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, but yeah, this property looks really really good. Look at this. मेरी थकी आँखों को सबसे पहले रिलैक्सेशन चाहिए चश्मा पहन के। Listen, not all days are perfect और ये मेरे लिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि ट्रैवल करते करते भी कुछ दिन बहुत हॉरिबली रॉन्ग जा सकते हैं। ऑल्दो आज का दिन देखा जाए तो इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि हमें रिजॉर्ट मिल गया, अच्छा खाना मिल गया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल का दिन जो इस रात के बाद आने वाला है इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेज वील एवर एक्सपीरियंस टुगेदर ऑन दिस चैनल। गुड मॉर्निंग गाइज। ये रूम इतना कंफर्टेबल था कि मुझे इसे अलविदा बोलते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है, सॉरी। सो आई हैड ब्रेकफास्ट अ वाइल बैक एंड अभी बहुत सुबह का टाइम है। लाइक इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जैक्ट टाइम, अभी 6:30 बज रहे हैं एंड आई एम लीविंग फॉर माई फर्स्ट एवर नेशनल पार्क सफारी टू इतोशा नेशनल पार्क एंड आई एम ऑल सेट। So it's quite, it's nature. So there's not a zoo that you go there and you see everything. Sometimes you don't spot anything. You might see maybe a lion or an elephant far away from the street or from the parking area. So today I lucked it out by wearing just the right jacket because यहाँ पे बहुत ठंड है सुबह के टाइम पे। तो अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क में आए अफ्रीका के तो ध्यान रखना कि एक जैकेट ज़रूर लेके आए अपने साथ, डाउन जैकेट, स्पेशली समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द विंड एंड इट्स ऑल्सो वार्म। After you're done, see the entrance here on the right side, where you see the elephant sign. Yeah. There's a water hole.
So you can check also there. Just for 10 minutes. Okay. Go to pay the permit. Then I will come back. ओके हमारी सफारी शुरू हो चुकी है एंड सफारी के बीच में वी स्टॉप्ड एट अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड अ वाटर होल. सो इतोशा नेशनल पार्क जो है, वैसे तो इतोशा का एरिया इज़ वेरी वेरी ड्राई, आपने देखा ही है सारी जगह. देयर आर थॉर्नी बुशेस, एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट, ट्रीज, बट यहाँ पे आर्टिफिशियली क्रिएटेड वाटर होल्स हैं बहुत सारे. और इन वाटर होल्स के आसपास एनिमल्स आके पानी पीते हैं. सो इस वजह से वाटर होल्स एक बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पे आप एनिमल्स को देख सकते हैं. तो मुझे अपनी आवाज़ इसलिए कम करनी पड़ी बिकॉज यहाँ पे एनिमल्स हैं. ये तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था एक वाटर होल का, बट अभी तो एक पूरा 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क बाकी था. एंड दिस वॉज लिटरली जस्ट द बिगिनिंग बिकॉज We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. एंड इसके बाद वी गॉट एक्सट्रीमली लकी बिकॉज वी स्पॉटेड लायंस एंड नॉट जस्ट ऑर्डिनरी लायंस बट फीडिंग लायंस जो बहुत ही रेयर होते हैं. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. ये लोग बारी बारी खा रहे हैं. Yeah. नहीं, not interested. That over there is an actual lion behind me who just fed on a giraffe. So this is wildlife in action. Time will heal all our wounds and our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. इसी के साथ साथ हम लोग इस वास्ट लैंड में घूमते रहे और एनिमल्स को खोजते रहे. एंड वी ऑल्सो रीच्ड अ वाटर होल शॉर्टली जहाँ पे हमने नमीबिया के नेशनल एनिमल ऑरिक्स को देखा. वी सॉ ऑस्ट्रिचेस, वी सॉ वेरियस अदर एंटेलोप्स एंड बहुत सारी बर्ड्स भी. क्या यॉन किया. और इसके बाद वी वेंट टू लोकेट अ राइनो ऑल्सो. इट्स बीन अबाउट 2-3 hours since we've been on the safari, but Eddie here is trying to find rhinos. So we spotted 2 of them inside in the trees In the far distance. in the far distance, and we were expecting that they will come towards the road, but they did not. But eventually हमें rhinos भी मिल गए, which was very great experience because rhino in the wild is not very easy to spot, especially in the daytime. तो overall I think हमारा guide बहुत अच्छा था जिसकी वजह से हम लोग इतने सारे animals को देख पाए. And we then came back. Nature, yes. Yeah, that's part of nature. All right. Good job. Thank you very Thank much. you. So Sarah, how did you like the safari? Oh, it was so great. We saw so many animals like lions, giraffes, Rhinos. zebra, even rhinos. Yeah. Pretty good. Gregor, how was it for you? It was excellent. Yeah. Many animals. Was this your first safari ever? Well, basically yes. Yes. Yeah, I would say so. Yeah. Mine too. First time. Yeah. Great Alright. experience. Thank you. सो इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम वापस पहुँचे और मैंने थोड़ा टाइम लिया ये डाइजेस्ट करने के लिए कि मैं वाकई ही में इतने करीब से वन्य जीवन को महसूस कर पाई. और ऑफ कोर्स लंच किया, ड्राइव किया. इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट कैंप साइट फाइनली पहुँच गई जो इस बार इतोशा नेशनल पार्क के अंदर ही था. एंड इतोशा नेशनल पार्क में रहने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा था. Welcome to Etosha National Park. Have a pleasant stay. Which of course, I mean, I don't want to go into too details of. But अगले दिन उगते सूरज के साथ साथ मुझे लगने लगा था कि कुछ और अच्छा तो ज़रूर आने वाला है इस ट्रिप में because it was already turning into such a good experience. तो बताइए मेरे साथ अगले एपिसोड में एक 500 साल पुरानी ट्राइब से मिलने चलेंगे. So I want to ask her that for where do they get this okra from? मतलब it's amazing how they live. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे and I'll see you very very soon. Bye bye guys. Hi guys, I just wanted to come in here and say a very very happy Diwali. मैं proper दिवाली की वीडियो तो नहीं कर सकती थी क्योंकि Happy Diwali! Oh हाँ.
और मुझे आप लोगों को अपने बहुत खास दोस्तों से मिलवाना था. बहुत खास, like amazingly खास. ये है कृतिका. She has a channel also on YouTube. Yes, guys, ये actually है शुगर की योगा classes. आप आइए. Okay, and कृतिका से तो आप मिल लिए. कृतिका का चैनल भी है. दोबारा रिवैम्प किसने करा है? तान्या ने. और Oh my goodness. डेकोरेट करा था. So she's my inspiration. Oh, and she's Mutual admiration club. Mutual admiration club, and she's like my dressing up inspiration. और शिवेश का भी एक चैनल है, वो भी जिसका नाम है Bake with Shivesh. So you guys can go check them out because these are my really good friends. Please. And I just wanted to come in here and wish you guys a very happy Diwali because Happy Diwali. कोई भी फेस्टिवल मैं अपनी फैमिली के बिना पूरा नहीं कर सकती. Yes. शिवेश ग्रुप अप जल्दी. Okay, चलो happy Diwali everybody. Happy Diwali. And हमारा Christmas vlog भी आएगा. Stay tuned for that. हम बाद में बताएंगे. अभी नहीं. And New Year vlog भी. Stay tuned. Stay tuned. Okay. यार शिवेश अभी नहीं बता रहा था ना.